nice day, a very good day. Okay. So which Mm, adjective did you choose for yourself and you mentioned it many times? yes. Yesterday, like I had said, I was going below the line. Yeah. But then today I kept on since morning, all my blessings I was thanking for health Hmm. and I kept on thanking the whole day that practice was going on. Okay. And from last 3, 4 days, actually, we were trying to get uh, Hmm. my parents and my mother-in-law vaccinated. Okay. But somehow what was happening was number nahi lag raha tha. Most of the hospitals vaccines were over and things. Hmm. So last 4 days it was happening continuously every day. Hmm. And today suddenly in the afternoon my husband said, "वहाँ पूरा खाली है, just get them." Okay. And we took them and in 15 minutes everything was done. Wow. Hmm. Hmm. And, and very happily and very nicely and all are healthy, safe and Hmm. happy and Hmm. we got them back. So I think that is magical. Because the Yes, it is. 4 days it was not happening and blessings are the whole day I was thinking of that only. Mornings were blessings and it Hmm. worked. Very nice. So when you were thinking like this, now you should have immediately started, your gratitude for the vaccine, for the, I place. did that. Yeah. Okay. I Okay. did that over there only in the hospital only. I started thanking everybody, Hmm. Okay. everything, as you told, no? So Yeah. Yeah. No, immediately I after was saying. things started happening. No, I was saying even in the past 4 days when you were feeling a little low about this situation that that is not happening, you're not getting the number, you should have started the gratitude for the vaccine, the hospital that day itself. Okay, because you were Okay. wanting something, and if you are paying gratitude for it in advance, like how we are doing for our vision board. Okay, vision Yes. board is like a much bigger dream, but on a regular basis, also on a day-to-day basis, if you want something and you don't know what to do, you immediately start paying gratitude for it. If you're going to meet a client, if you're going to meet the doctor, if you're going to meet some relative, anything, you're going even if you're going to have dinner, you don't know if the reservation is there, how the food will be, you just start giving gratitude and that thing will happen. Okay, Yes. I'm telling you Yes. because I have practiced this. I'll Yes. not say 100% हो जाता है, but नहीं नहीं but हाँ, definitely हाँ. but बहुत होता है. If I am grateful the whole day, if I am above the line most of the times, then it happens even faster. या देन यू आर श्योर कि अभी जो ग्रैटिट्यूड किया है, हम क्लाइंट के पास जा रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं या शॉपिंग भी करने जा रहे हैं, वो सब कुछ एकदम सही होने वाला है. ठीक है. सो एनीथिंग दैट यू आर प्लानिंग टू डू विच यू फील यू डोंट नो क्या होगा उसका रिजल्ट, जस्ट स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड. एवरीथिंग इट्स लाइक ऐसा होता था कि अगर वो वैक्सिंग वाली भी आती थी ना, तो भी ग्रेटिट्यूड, वैक्स को ग्रेटिट्यूड, उसको वो स्ट्रिप्स को, हर चीज को ग्रेटिट्यूड की लगे लगे नहीं, बस एकदम अच्छे से हो जाए. दैट वे इट शुड बी लाइक दैट. इफ यू गोइंग टू द Okay. डेंटिस्ट, start giving gratitude to the chair, to the dentist, to the instruments, everywhere on your way. When you are going to a particular thing, start giving gratitude. Mentally करना है. हाँ, अगर कितने सारे चीज ऐसे होते हैं ना, हमको नहीं पता क्या है, आप बच्चों के पीटीएम में जा रहे हो या कुछ भी, लाइक एनीथिंग, just continue with your gratitude for that particular area. Okay, then it becomes like focused gratitude. हाँ, जो आज हम लोगों ने कल जो की थी अपनी हेल्थ वाली, रिलेशनशिप वाली, it is like Yes. focused. I'm like full gratitude in that particular area where I want the results. Yeah, good results. Yeah. Absolutely. Yes. We after the whole sequence, we were so thankful, and then we got to know that the guards over there they had not had anything. उनका breakfast, जो भी उनका tiffin आता है वो आया नहीं. I Huh. came home, I cooked for them, and then my husband took the tiffin for them, and they all were very happy. So Oh, that is excellent. That is wonderful. Yeah. Like really nice, huh? Mane, out of the way, what you did now was like amazing, Sangeeta ji. Awesome. Very nice. thank you. And I'm sure you So must have felt so good now. है ना? yes, Yes, yes. My awesome. daughter said, "Mama, क्या कर रहे हो?" I said, "We are sending over there because उनके tiffin नहीं था." And Hmm. my husband said, "सब्जी रोटी लाके दे." They said, "नहीं, हमें उससे नींद आती है." Then what will you have? They said, "ढोकला हमें पसंद है." So I came home, I made dhokla, and I sent dhokla for them. Awesome, huh? Like this is seriously, Sangeeta ji, awesome. Really Thank nice. you. Thank you. Nice. Thank you. So Like I felt very nice by awesome. doing that. Awesome. Like very happy. Oh, cool. ये तो like ये जो आपने out of the way जाके किया है ना, I don't know if I can ever do that. You're like amazing. ना?
It's very easy, you know, just to buy something and give, just to give money. That's very easy. Coming back home, preparing and then sending. Very nice. Wow. Truly an inspiring thing that you're doing, huh? And thank you for sharing, huh? And then like, you know, definitely एक बार तो आएगा ही मन में कि हाँ ऐसा करना चाहिए. हाँ, awesome. In this difficult times, nothing is available, so it's very difficult for them also. Not difficult, huh? We have to use challenging, okay? Challenging, yes. It's Yes. challenging for them. Challenging, yeah. For everyone. So, but it is challenging. Like challenges we can, you know, easily overcome. Challenges are like challenges. उसको आराम से हम लोग पास कर सकते हैं. थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, but हो जाएगा. Difficult means like not so easy, huh? So it's like I just forgot. no, it's like good. आप बात करोगे ऐसा, हम याद दिलाएंगे तो आपको कितने बार खुद याद आएगा, है ना? Like that is why we are a group. कि हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही encourage करेंगे, ऐसे ही cheer up करेंगे, correct करेंगे, inspire करेंगे, like how you are doing, ना? Yeah. Thank you. Yeah. Thank you so much for your sharing. Amazing sharing. Because of that, now I'm feeling above the line throughout and very happy. That grateful feeling throughout. Plus, you have collected so many blessings, huh? So many blessings you have collected. You have inspired your family, है ना? उनको भी लगाओ कि अरे ऐसा, तो आप सोचो उनको भी आपने इंस्पायर किया और हम लोग को तो किया ही है. Like seriously, very nice. So आपने इसका मतलब प्रैक्टिस आज की नहीं कर पाई, राइट? नहीं. हाँ, तो अभी कर लीजिए. आज की प्रैक्टिस नहीं की. आज की प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत कीन भी नहीं थी, तो आई वाज थिंकिंग जिसके लिए था जो चीज हो गया. ओके, टुमारो डू टुडेस प्रैक्टिस. नहीं, आपको करना ही है, हाँ, वरना वो जो हम लोग 28 डेज का जो हमारा साइकिल चल रहा है, यू कैन इवन वर्क ऑन अ रिलेशनशिप व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू यू. ठीक है, उसमें कोई भी ब्रेक डाउन नहीं हो तो बहुत ही अच्छी बात है. उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ना, सिर्फ सोने पे सुहागा कैसे कर सकते हैं, उसको वर्क ऑन दैट. या फादर, मदर, हस्बैंड, बच्चे, जिसके संग भी है, जिसको आप चाहते हो कि नहीं एकदम 4 चांद लग जाए, जस्ट राइट अबाउट दैट. ठीक है, इट हैज टू बी ओनली वन, वी कैन नॉट हैव मोर देन वन. नो, इट ओनली वन. या, okay, thank you. Yes, thank you. Yeah, so anyone else who did the practice? Hi Priya. Hi, Samiksha this side. Sorry, I can't switch on my video. I'm on the terrace taking a walk. Okay, no problem. तो मैं ऐसे ही बोलूं तो चलेगा? हाँ, चलेगा. ऑन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, but sharing मैं दिखूंगी नहीं actually. मैं कर लेती हूँ on, but you won't be able to see me. It's really no dark. problems. आप sharing कर लो. Yeah. हाँ, मैंने की आज की practice. I had a friend. She was my best friend for almost 6 years. She was everything for me after my family. बट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, बाद में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, एंड वी आर नॉट इन टच फ्रॉम द लास्ट 1.5 year नाउ. So I wrote about her, and actually I was choked with emotions when I wrote it. So I called Deepika. Deepika is my very close friend, and I told her कि ऐसे ऐसे मैंने फील किया. So मैंने कहा चलो अब मैं क्लास में भी ये शेयर करूंगी. बट अब मैं बहुत रिलीव्ड फील कर रही हूँ. बट 10 तो बहुत कम था उसमें लिखने के लिए. मैं तो अभी 100 लिख सकती हूँ गुड थिंग्स अबाउट दैट रिलेशनशिप. So if you feel like, you can call her also after some time, if you feel like ऐसा कुछ. No, I don't want to. Okay, then don't. Just let it out and just write how much ever you want to. Okay. So it was really magical. The practice was really magical today. Very good. That was the whole idea, ना, कि एकदम just दिल से आप निकाल दो उसको. वो कहीं पे वो है, वो काफी टाइम से है दिल में, तो आज निकला बहुत. Okay, wonderful. And तब तक करते रहो. Rhonda Byrne has told us ना, you can keep on doing this practice till you feel light. Yeah, आप उसको कई दिनों तक भी कर सकते हो. That was the last paragraph, ना. I think there is a lot of music behind me. Everyone can hear it, yeah? No. Oh, then it's fine. Okay. Like proper drums and stuff is happening. Yeah. Oh. Nothing like that at our end. Okay, good then. Thank you. Yeah, so very good. आप और भी, if you feel 10 बहुत कम है, 100 लिखना है, तो you do it. That is what the last, it was almost there in the end. I'll write it for another few days, जब तक कि मेरा एकदम relieve नहीं हो जाता है. That you can use this, do this practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward that person. Okay, तो आप तब तक लिख सकते हो. कल नहीं लिखना है, 2 दिन बाद लिख लीजिए, but you do it whenever you feel like. You just write about that person, that friend of yours. Yeah. ठीक है. तो ये तो सिर्फ एक ही के लिए करना था ना, और तो किसी के लिए नहीं करना है. नहीं, देखिए
अगर एक ही जन था तो आप एक के बारे में करके पहले उसको पूरा निकाल दो, ठीक है। इफ यू फील कि नहीं कोई और जन भी है ऐसा जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है, किया था और आपके मन में अभी भी उसके बारे में है, यू कैन टेक दैट पर्सन एंड स्टार्ट विद दिस सेम प्रैक्टिस आफ्टर अ फ्यू डेज, बट फर्स्ट इस वाले जन के लिए पूरा कर लो, ठीक है। इफ यू Okay. चार्ज किया है, उतना हल्का नहीं लग रहा है, डू इट अगेन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, राइट दैट डाउन, देन इफ यू फील कि हाँ अब हो गया, हाँ, तब Mm-hmm. कोई दूसरा जन है उसके बारे में भी आप कर लो, बट दिस शुड बी not included in your morning blessings. वो morning blessings अलग हुए, those are your gratitude for things that you are feeling blessed कि ये हमको गिफ्ट मिला हुआ है, उन चीजों के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज अ सेपरेट प्रैक्टिस, दिस इज अ प्रैक्टिस टू क्लियर द वेसल, जो हमारा वेसल Okay. जो भी था उसको हम क्लियर कर रहे हैं, सो दैट न्यू थिंग्स कैन फिट इन, न्यू थिंग्स कैन heal, be healthy and bring magic in your lives. It is for that. Okay. Thank you. Thank you for doing the practice. Yeah. I am trying to do my level best, but अभी with no maids and servants तो बहुत workload घर में भी बहुत ज्यादा है, so बहुत difficult हो जाता है कुछ कभी कभी कुछ करना, but still I take out time, शाम को मैं निकालती हूँ, दोपहर को अपना टाइम जब भी मुझे मिलता है तो मैं करती हूँ। आपको मेड और उसका करना है ना, आप उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखो, ये जो सेम लिख रही हूँ फिर भी नहीं आ रहे हैं वापस। आएंगे आएंगे, इसका मतलब लोगों ने इतने कंप्लेन किए हुए हैं ना। Right. हाँ तो आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, आ जाएंगे, जस्ट कीप डूइंग प्रैक्टिस। हाँ ठीक है, thanks. yes. Any other one, someone else who wants to share, how did you feel after doing this practice? I can share. Yes, Swati. So I did it for a person जिसके ऊपर मैं कल थोड़ा गुस्सा हो गई थी। मुझे खराब भी लगा कि इतना प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं गुस्सा कैसे हो गई। फिर मेरे को लगा कि कल ही ये प्रैक्टिस पता चला, तो आई थॉट कि आज मैं करूंगी, तो आज मैंने किया एंड आई फेल्ट वेरी लाइट आफ्टर दैट। Okay. देन मेरे को लिखना, बिकॉज लाइक बिजनेस रिलेशनशिप है, तो मेरे को कोई इतना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 10 कैसे लिखूं, बट सोच सोच के अपार्ट फ्रॉम व्हाट गुड ही इज डूइंग फॉर माय कंपनी, उनका गुड क्वालिटीज भी देखा, लाइक देयर वर 3 वेज इन व्हिच यू कैन राइट दिस, वो भी लिखा मैंने। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वो डीपर वाला चीज हुआ। अच्छा, कभी भी dig deeper वाला ना वो जरूरी है, and I will add, just you please complete, then I'll add, sorry I interrupted, yeah. It's okay दीदी, वही था कि आफ्टर से 6 और 7 मैंने और सोचा और तो फिर आई कुड कम अप विद सम थिंग्स। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब वन टाइम इज गोइंग टू हील माय रिलेशनशिप विद हिम, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस हैं, इसीलिए थोड़ा गुस्सा भी हुई, एंड बट आई थिंक ये बार बार करूंगी, देन आई विल फोकस ऑन the positives more and maybe control my reactions better. Okay, good. It's a continuous practice. हम लोग को रोज हर सिचुएशन में ही करना है। One thing that I wanted to add was that after you maybe however you reacted to that person, you should not feel that अरे मैंने ये गलत कर दिया, that way को जो guilt आ रही है, that is guilt, that's a feeling which is below the line, don't do that, ठीक है। If you have realized it, that is what is it called, that वो यूनिवर्स को लगता है कि हाँ सब क्लियर हो गए, रिमेंबर वी हैड रेड दिस, द मोमेंट यू एक्सेप्ट, हाँ मतलब एक जेन्युइन फीलिंग से कि हाँ गलती हो गई, हाँ, तो यूनिवर्स उसको इग्नोर कर देता है इन द सेंस लाइक वो आपको उसके लिए आपके ड्रीम से दूर नहीं करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैड रेड इन yesterday I was feeling guilty। फिर क्या हुआ, फिर वो जो आपने सर्कल वाला चीज बताया ना, मैंने पापा को फोन किया कि पापा ऐसे मैं गुस्सा हो गई, तो फिर सरप्राइजिंगली पापा ने उस समय बोला कि कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है व्हेन पीपल डू दिस, सो आई वाज लाइक पापा इज सपोर्टिंग मी इसमें। सो दैट वाज आल्सो वेरी सिमिलर टू जो आप कल व्हील वाला चीज बोल रहे थे ना, कि व्हेन यू आर फीलिंग गिल्टी तो समबडी इज देयर जो आपको पुश करके वापस ऊपर ले आता है, तो उस समय पापा से बात करने से इट हेल्प, आई फॉरगिव माय सेल्फ इजीली। या वाओ, क्यूट, yes, very nice, Swati. So it's like, see, तुरंत आपने सुना और you could relate it to the thing that we discussed yesterday. Yeah. And hi to the little cute one. Yes, he ran away, your nephew. He's playing with my bag. अभी मैं इसको रोक नहीं सकती, तो now he's taking everything out from my bag. Oh, okay. Kids know all this. Yeah. Yes, okay. So thank you, Swati, and thank you. And I'm sure if you keep on doing this practice, you will be able to,
get the person do the things how you want. Okay, so you just have to write it. Yeah, thank you that this person is doing whatever you want him to do. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसके ऊपर वशीकरण मंत्र कर रहे हैं. इट इज नॉट दैट. इट इज जस्ट दैट कि हम उनसे जो चाहते हैं हम लोग वही तो कराना है. अगर हमको अपनी बॉडी को जैसे अपन डायरेक्ट करते हैं कि नहीं दिस वाटर इज गोइंग एंड हीलिंग माय बॉडी, सो दिस पर्सन हु इज देयर, हम लोग चाह रहे हैं कि वो वैसे ही करे जो हमारे लिए मे बी पॉजिटिव हो, दैट वे. ओके, तो वही करना. लाइक सी व्हेन आई राइट gratitude for my designers, I write they're working so honestly, they're doing amazing designs. So it's not that हम वो manifest कर रहे हैं, है ना. अब हमने कितना gratitude किया, कितनी कम complaint की, मेरे को result वैसे ही मिलेगा. तो same way you can do it for your team. Okay. Yeah. Okay, someone else wants to share or should we start the reading? हमने तो लिखा है. Very good, बताइए. हाँ. पर प्रिया जी, मेरे को एक बात पूछना था आपसे. मैंने जितने भी क्लास किए, मेरे एक के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है. मैं हर टाइम उसके लिए लिखती हूँ पर चेंज नहीं आया. मैं तो चाह रही हूँ पर सामने वाला कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है. देखिए, हम लोगों ने ये देखा है कि सबसे देर में रिजल्ट अगर अपन हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में करते हैं ना, तो रिलेशनशिप में थोड़ा देर में आता है. ठीक है. और अगर और उसमें क्या होता है, उसके मन में चेंज आ भी रहा होगा तो मे बी दैट पर्सन इज नॉट सो एक्सप्रेसिव. अच्छा, भी होता है ना, because ego he might be not able to express. हाँ, और ये ईगो मत बोलिए. ठीक है, आप ये मत बोलिए. अब आप ये लिखिए, आपने जो ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है. अब आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट दिखाई दे, तो यू राइट हाउ यू वांट दैट पर्सन टू बिहेव. ठीक है. आई एम सो ग्रेटफुल that whoever that person is bringing you gift or is speaking to you or thanking you or acknowledging you or appreciating you. जो भी आप चाहते हो कि वो पर्सन वैसे करे. ठीक है, वही लिखे. डोंट एक्सपेक्ट कि वो आके सॉरी बोलेगा. हाँ, ये मत एक्सपेक्ट करिए. ठीक है. क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है ये प्रैक्टिस करने का? आपका इंटेंशन ये नहीं है कि सामने वाला आके आपको सॉरी बोले. ये हम लोग को याद रखना है. ठीक है. हम लोग का इंटेंशन इस प्रैक्टिस का ये है दैट हम अपना जो मन में मैल है उसको दूर हटा रहे हैं. वो मैल क्यों है? क्योंकि वो जब तक हमारे मन में एक ग्रज है, उससे मेरे आगे के रिलेशनशिप और मैजिक कम हो रहे हैं. ठीक है. तो आप यही सोच के आपको करना है ये प्रैक्टिस. ठीक है. हम अपने लिए कर रहे हैं, हम सामने वाले को आके सॉरी मेरे को बोले उसलिए नहीं कर रहे हैं ये प्रैक्टिस. ठीक है. तो ये सोच के आपको करना है. अब आपने ये जो प्रैक्टिस की, अब आप इसको फिर से करिएगा और ये सोच के करिएगा कि आप ये क्यों कर रही है, सो दैट यू फील राइट विथ मी. मैं वो लिखना फिर. ठीक है. अब मैंने उसमें वो लिखी थी कि अच्छा ही लिखना था ना अपने को, कि उसकी कुछ अच्छा ही है तो वो 10 लिखे. पर अभी आपने देखिए, ये जो आपने 10 लिखे हैं ये तो आज का प्रैक्टिस हो गया. ठीक है. बट अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके संग डिफरेंटली बिहेव करे, वो आप अलग से लिखो. ठीक है. वो इस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, वो हम आपको अलग से बता रहे हैं. इट्स लाइक इफ आई वांट माय क्लाइंट टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि हम चाहते हैं मेरा क्लाइंट को मेरा डिजाइन अच्छा लग जाए, ये प्रोजेक्ट मेरे को मिल जाए, तो आई एम राइटिंग इट एंड ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इट. तो हम उसके लिए लिख रहे हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट माय क्लाइंट इज अप्रिशिएटिंग माय डिजाइन एंड ही हैज गिवन मी द प्रोजेक्ट. हमको पता नहीं वो ऐसा करेगा, बट आई एम वांटिंग इट, सो आई एम राइटिंग इट फॉर द यूनिवर्स. ठीक है. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट दिस ऑर्डर ऑफ जो भी है, that way I am so grateful that the friends are liking my whatever cooking जो भी मैंने आप वो लिख रहे हो. इट्स लाइक आप जो चाहते हो you are asking the universe and हम लोग पहले से उसके लिए grateful हो रहे हैं. that I am saying you write that. ठीक है. Yeah. Thank you. See, this is nice. आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, आपने अपना बताया, तो आई एम श्योर और भी किसी के मन में आ रहा होगा. राइट. तो कुछ क्लियर होता है ना ऐसे. Okay. Yeah, thank you. So I think let's start the reading because today's chapter is really important. Yeah. So who wants to read? And we'll take the sharings after the session, after the reading. Yeah. So because I was, doing all this. So who wants to read, please? No one. Inky Pinky Ponky कर लें. So Chaya ji, you want to read? Okay. Yeah, I'll read. No problem. Okay. No, you raised your hand now, so I thought आप पढ़ना चाहते हैं इसलिए. Yeah. I'll read. Okay. Yeah.
So please start. Magic and miracles in health. Yeah. Day 16. Yes. So here we are seeing that magic elixir. ये आप देखिए, ये आप ऐसे लग रहा है कि आप शॉप के अंदर हो. हाँ, ये जो भी शॉप है और बाहर ग्लास पे ये लिखा हुआ है. इट्स लाइक ये दिस इज अ शो विंडो एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बिकॉज ये मिरर उल्टा लगेगा ना. इफ आई एम इनसाइड एंड बाहर में लिखा हुआ है फॉर द पासर बाय, और लिखा हुआ है मैजिक एलिक्सर. या एंड व्हाट इज एलिक्सर? एलिक्सर, एलिक्सी, whichever you pronounce it, it's like ये आपको क्योर कर देगा. इट्स लाइक अ क्योर ना. हाँ, हर चीज का क्योर है ये. ठीक है. एंड यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, ये सब क्या है? ऑफ कोर्स हेल्थ है, तो मेरे को तो लग रहा है ये सब होम्योपैथी मेडिसिन ऐसे रखी हुई है, कुछ ना कुछ तो कुछ मिक्सचर, टिंक्चर, समथिंग इज केप्ट हियर. या आप बोल सकते हो ये वाटर है, राइट? इट कुड बी वाटर और नो. बट अब लोग इतना अलग अलग, ये क्या है? इट्स टोटली ऑन अस. इट्स लाइक सम मेडिसिन, इट्स नॉट ऑफ कोर्स एन एलोपैथी मेडिसिन तो नहीं लग रही है ये. कुछ इधर से जार्स हैं, बाहर ट्रीज हैं, एंड देयर इज मैजिक ऑन दिस. सो लेट्स सी इफ दिस इज वाटर और मेडिसिन. व्हाट इज दिस? या Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. Yeah. So what Saint Augustine is telling us that miracles are not contrary to nature. Means nature में miracles बहुत common है, माने बहुत आम है miracles nature के लिए. Not mango मतलब like बहुत common है. ठीक है. तो अब ये किसके contrary है to what we know about nature? हम लोग ये सोचते एकदम सिंपल है, एक बीज डालो, पानी डालो, पेड़ निकल आएगा और आम खा लो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो कहाँ पे आपने वो बीज डाला है, कैसे हुआ है, क्या हो रहा है, किसने उसको कैसे उसको रेयर कर रहा है, सब कुछ पे डिपेंड करता है ना. बट हर चीज नेचर में पॉसिबल है. आप देखिए ना, हर टाइप का प्लांट कहीं पे भी हो सकता है. स्नो के लिए अलग है, डेजर्ट के लिए अलग है, नॉर्मल के लिए अलग है. एक पेड़ दूसरे पेड़ से भी डिफरेंट है, माने एवरीथिंग इज यूनिक. हाँ, कैसे भी टाइप के एनिमल्स हैं, कैसे भी टाइप की फिशेस हैं, हर टाइप की चीजें हैं नेचर में. हाँ, तो और देखिए, उन लोगों को क्या कोई डॉक्टर को देखना पड़ता है? जो जंगल में हैं या कहीं पे भी हैं, उनको क्या कोई डॉक्टर देखता है ठीक करने के लिए? हाँ, आजकल हम लोग लेके चले जाते हैं उनको डॉक्टर के पास. जितने भी बर्ड्स हैं, हाँ, उनकी एक लाइफ है, अपने आप वो ठीक होते हैं, अपने आप वो बेबी होते हैं, एग्स होते हैं, सब कुछ हो जाता है. तो ये कैसे होता है? इजंट इट मिरेकुलस? आप वो सब छोड़ो, आप अपनी बॉडी के बारे में ही सोचो. When I read about our body when I was in school, I was like amazed. हम लोग ऐसा होता है, हमने यहाँ से खाया तो ये सलाइवा बना, ठीक है, एंड उसके बाद वो कैसे पेट में जा रहा है, तो वहां पे एक एसिड है, और वो एसिड से हमारी बॉडी नहीं जले, उसके लिए एक लेयर है. तो मैंने कितना कुछ अमेजिंग है हमारी बॉडी के अंदर. हाँ, और हम लोग को लगता है कि ये सब बहुत नॉर्मल है, ये सब कुछ मिरेकल नहीं है, ये तो बहुत आम बात है. हम लोग ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है. हर चीज मिरेकुलस है. कैसे? आप देखिए, हमारी जो स्किन है उसमें एक भी जॉइंट नहीं होता है. हैव यू थॉट ऑफ इट? एक भी जॉइंट नहीं होता हमारे स्किन में. जब चोट लगती है तब एक तो ऐसा एक तो आता है, और फिर वो भी हील हो जाता है. कैसे होता है? इजंट इट अ मिरेकल? जस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स. हमारी आईज, हाँ, हमारी आईज की जो क्या बोलते हैं उसको, जो कैप्चरिंग वाली जो होती है ना क्वालिटीज, अगेन आई फॉरगॉट, वैसा कैमरा दुनिया में है ही नहीं, बना ही नहीं है. हमारी आईज जैसे कैप्चर करती हैं, ठीक है. और हमारा ब्रेन, हाँ, वो तो मैंने लाइक साइंटिस्ट लोग तभी सोच ही नहीं पाए हैं. और ये तो अभी हमको लेटेस्ट पता चला. लाइक ठीक है, मेरी जीके थोड़ी सी उतनी स्ट्रांग नहीं है. आर ब्लड, हमारा ब्लड दोबारा क्या हमारे कोई बना ही नहीं सकता. हमारा ब्लड तो इतना यूनिक है. तो अगर ये सब मिरेकल नहीं है, और ये बनाया किसने? नेचर नहीं तो बनाया है, तो फिर क्या है? टेल मी. और कैसे उन्होंने बनाया कि एक, आप सोचो ना, ह्यूमन बर्थ, आप यही सोचो ना, या ह्यूमन क्या, कोई भी बर्थ कितना मिरेकुलस है. हाँ, कि कब वो एग आएगा और वो कैसे होएगा. इट्स लाइक एवरीथिंग इज सो मिरेकुलस. और हम लोग इस सबको कितना आम, एकदम बहुत कॉमन लेते हैं हम लोग इसको. तो आप सोचो, ऐसा अगर यूनिक मिरेकुलस हमारी बॉडी का इन्वेंशन है, इन्वेंशन नहीं, आप जो भी बोलो, नेचर का प्रोडक्ट है हम लोग, तो क्यों हमको डॉक्टर के पास जाना है? क्यों हमको कहीं और जाना है? हमारी बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं.
100 ट्रिलियन सेल्स. हाँ, आई हैड टू रीचेक. हाँ, एक्चुअल में ये यही है क्या? हाँ, इतने सारे सेल्स हैं एंड सबको अपना काम पता है. हर सेल अपना अपना काम करती रहती है विदाउट आर नोइंग ऑल्सो. हमको पता ही नहीं है कि हमने क्या खाया, क्या अंदर पेट में हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता हमको. वो अपने आप अपना काम करती रहती है. डू वी टेल इट कि आज हम समोसा खाएंगे तो उसको ऐसे डाइजेस्ट करना, आज हम सैलेड खाएंगे तो ऐसे करना. वी डोंट डू एनीथिंग. हम लोग अपने आप, हमारे बॉडी में सब कुछ होता जाता है क्या. एंड देन वी आर वरिड कि ये दवाई खाएंगे तो ही हम ठीक होंगे, ये ऐसा करेंगे तो ही हम पतले होंगे. व्हाई डू वी डू दैट? बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दिस मिरेकल. So today's chapter is all about rediscovering how our body heals and how we are going to aid it by removing the beliefs that we have built since childhood. Okay? Yes. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depressions and other mental health problems, which are all states of less than full health. Yes. So अब देखिए, we should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have a birthright of full health. अब ये क्यों बोला उन्होंने बर्थ राइट? हाँ, बर्थ राइट जब भी सोचते हैं तो हम लोग, मेरे को तो फ्रीडम फाइटर ही वो वाले याद आते हैं. हाँ, लोग गंगाधर तिलक थे ना, क्या फ्रीडम इज अ बर्थ राइट, समथिंग समथिंग ऐसा था ना कुछ. स्वाति विल रिमेम्बर आई गेस. हाँ, या और भी किसी को याद हो सकता है. बट आप देखिए, कोई भी बेबी बॉर्न होता है, 95 to 98% जो बच्चे बॉर्न होते हैं, हाँ, वो लोग कैसे रहते हैं? फुल ऑफ एनर्जी. माने रोएंगे तो ऐसे रोएंगे कि बस पूछो ही मत. हाँ, माने कि पूरा घर हिल जाता है, पूरी दुनिया उन्हीं के किनारे रिवॉल्व करती रहती है. दे आर फुल ऑफ एनर्जी. चोट लगती है तो भी उठ के दौड़ते भागते रहते हैं, बुखार भी है तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. हम लोग बोलते हैं अरे भाई यहाँ गिरोगे, वहां चोट लगी है, मत भागो मत दौड़ो, बट उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट्स लाइक रनिंग अराउंड एंड स्टेइंग एनर्जाइज्ड इज देयर बर्थराइट. तो हम लोग वहां से यहाँ कैसे हो गए? हाँ, उनको पता है क्या कि आइसक्रीम खाने से जुकाम होगा? उनको तो पता ही नहीं है. रनिंग नोज है, कुछ भी है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, दे आर जस्ट बिजी एंजॉयिंग एंड बीइंग हैप्पी. हाँ, ये हम लोग ने उनके मन में डाला, जैसे हमारे मन में हमारे पेरेंट्स या एल्डर लोगों ने डाला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आइसक्रीम खाएंगे तो जुकाम हो जाएगा, हाँ, नंगे पैर चलेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा. अब देखो ना, सारी मम्मी लोग क्या करती हैं, सारे सभी करते हैं. ये बॉटल सैनिटाइज हो रही है, ठीक है, ग्लास एकदम धुल रहा है, और बच्चे लोग क्या करते हैं? क्रॉल कर रहे हैं, जो उठाया जो मिला सब रख लिया मुंह में. क्या हुआ वो सैनिटाइजेशन का? हाँ, स्टेरिलाइजेशन का, सॉरी नॉट सैनिटाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन का क्या हुआ? और उनको क्या होता है? कुछ होता है उनको? कुछ नहीं होता है. हाँ, 95% टाइम उनको कुछ नहीं होता है, अनलेस कोई मेजर ही कुछ कीड़ा मकोड़ा उठा के उन्होंने खा लिया हो, वो अलग बात है. बट क्या होता है? उनको कुछ नहीं होता है. सो और हम लोग ने क्या किया है, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन बड़े होते गए, वो सारे बिलीव्स, वो सारी जो हमारी हैप्पी एनर्जाइज वाली जो स्टेट थी, वो सब चली गई. राइट? एंड वी हैव बिल्ड दिस बिलीव्स इन आवर माइंड. ऐसा करेंगे तो ऐसा होएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होएगा. यही है ना कि थोड़ा दौड़ेंगे तो नी में चोट लग जाएगी, क्योंकि घर में ये सब जेनेटिक है तो हमको भी यही हो जाएगा. तो ऐसे करके हम लोग ने ये अपना एक बिलीव सिस्टम बना लिया है. हाँ, बट जब हम बॉर्न हुए थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था. हाँ, एक ही फैमिली के 4 बच्चे अगर होते हैं, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को नहीं होता है. तो ऐसा क्यों? अगर जेनेटिक ही होता तो आप बोले नहीं नहीं, उसके अंदर ना वो वाली जीन ज्यादा स्ट्रांग थी इसलिए. ऐसा कुछ नहीं होता. हाँ, वो सब कुछ हमारे बिलीफ बना रहे होते हैं. क्या होता है? वी रेड ना दैट व्हेन वी आर हैविंग फूड और वाटर, व्हाटएवर थॉट्स वी हैव, वो थॉट्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं. कैसे कंट्रोल करते हैं? थ्रू वाटर वी चेंज हाउ द सेल्स वर्क इन आवर बॉडी. हम लोगों ने पढ़ा था ना वो मैजिक इंग्रेडिएंट वाले चैप्टर में कि हम लोग पानी और खाने को, जो हमारी बॉडी में पूरा टाइम पानी और फूड है, हमारे थॉट्स उस फूड और सेल्स को डायरेक्ट करते हैं कि कैसे काम करना है. ठीक है, तो अगर हम अपने खुद ही अपने बॉडी को ये डायरेक्शन देते रहते हैं अपने थॉट से, अपनी बातों से, तो हमारी बॉडी कैसे हील होगी. तो आज का चैप्टर हम लोग को यही सिखाएगा कि कैसे हम लोग हमारी बॉडी को राइट कमांड देंगे, जैसे मेरी बॉडी मेरी बात सुने. ठीक है, और सिर्फ फिजिकल नहीं, कितने सारे चीजें लोग, माने कितनी सारी लोग,
माने बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं। अगर कोई फिजिकली वेल है तो मेंटली ठीक हो सकता है नहीं हो, उसका कुछ कॉन्फिडेंस लैकिंग हो, या वो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाता है, सैड हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। हाँ, अगर वो फिजिकली ठीक है तो। कई जन फिजिकली अनफिट है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। कई जन सेक्सुअली नहीं है ठीक। बहुत हर एरिया, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, इंटरनल, एक्सटर्नल, हर चीज हम ही ने कंट्रोल की हुई है, ठीक है। और हमको लगता है कि नहीं बाहर के फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बट एवरीथिंग दैट आवर बॉडी रिएक्ट्स टू, और the way it behaves is totally controlled by our mind. Yeah. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health and being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. Yeah. If you don't think gratitude. Yeah, I was अच्छा. saying, हाँ, हाँ. आप देखिए ये कह रहे हैं all the miracles of healing we'll see, वो क्या होते हैं, वो जो miracles होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी स्टेट हमारा लेस देन फुल हेल्थ है, वो जब वो उसमें फुल हेल्थ हो जाता है तब उसको हम लोग को लगता है ये मिरेकल हो गया, ठीक है। सडनली चोट हील हो गई। हाँ, डॉक्टर, कितने बार आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर के पास जाने के पहले डर के मारे ही तबीयत ठीक हो जाती है, ऐसा भी आपने कोई कोई सुना होगा ना, ऐसे भी यूनिक केसेस हमने देखे हैं। हाँ, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज स्मॉल, तो मेरा भाई ना थोड़ा सा नॉटी भी था, अभी भी है। तो क्या होता ना, ऐसे कहीं कूदा फांदा और उसका ना ये हाथ का अंगूठा ऐसे ना डिसलोकेट हो गया। ही वाज वेरी स्मॉल, आई थिंक 5-6 इयर्स का होगा। तो अब उसको पहले यहाँ पे ऐसे होता ना कि पहलवान के पास ले जाओ, ऐसे खींचेगा तो सीधा हो जाएगा, आई डोंट नो अभी भी होता ही होगा ना। तो उसको मन में डर आ गया कि अब वो जाएगा, वो चोट लगेगी उसको, ये वही, वो स्मॉल ओनली। एंड क्या हुआ, हम लोग उसको लेके जा रहे थे एंड रोड क्रॉस करके ही कहीं पे था और वो गिर गया फिर से, ठीक है। ऑटोमेटिक उसका हाथ का अंगूठा सही हो गया, ऑटोमेटिक। तो वो डर से उसका पहले ही उसका वो ठीक हो गया अपने आप में। एवरीवन देखा तुमने ऐसे किया वैसे किया, वी स्कोल्डेड हिम अ लॉट एंड ही वाज सो पेट्रिफाइड कि जितनी जोर से चोट नहीं लगी, ही वाज मोर स्कैर्ड कि व्हाट द डॉक्टर और द पहलवान विल डू। और वो अपना ज्यादा ज्यादा गिर गया एंड वो ठीक हो गया उसका। फिर हम लोग गए भी उसके पास, तो उसने जस्ट बैंडेड करके, क्रेप बैंडेड करके दे दिया। सो इट्स लाइक हम लोग कैसे हमारी हेल्थ फुल्ली रिस्टोर हो जाती है, वो कैसे होती है, इट्स जस्ट थ्रू द वे वी आर थिंकिंग। ये जो मिरेकल्स होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं, बट वी आर गिविंग द कमांड टू आवर बॉडी subconsciously, consciously, when we are signaling the right things, our body starts healing, and those are the miracles that we want in our lives now. Yeah. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. Yeah, तो हम लोगों ने सीक्रेट मूवी में और सीक्रेट बुक में बहुत सारे मिरेकल्स ऐसे देखे हैं कि कैसे उस लेडी ने अपना कैंसर ठीक किया, कैसे जो आदमी ऊपर से गिरा था वो एकदम हील हो गया। और इस टाइप की छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरीज अगर हम लोग को देखनी है तो हम लोग उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली आई हैव टोल्ड यू व्हाटएवर लिटिल इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन माय लाइफ, वो सब विद वाटर ओनली आई हैव क्योर्ड, ठीक है। माने मेडिसिन भी मेरे को बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही खानी पड़ी, अदरवाइज वाटर फूड से ही मेरी मैक्सिमम चीजें ठीक हो गई हैं। एंड आई एम श्योर जो आप लोग पहले सेशन कर चुके हैं आपने ऐसा फील किया ही होगा, और जिन्होंने नहीं भी किया है, क्यों काढ़ा पी के हमारे गला ठीक हो जाता है, राइट? क्यों दूध हल्दी खा के बॉडी एक चला जाता है, क्यों चला जाता है? टेल मी, तब आपने कोई दवाई खाई थी? वो दूध हल्दी खा के सुबह लगता था कि हाँ सब दर्द ठीक हो गया, जहां भी कल गिर के चोट लगाई थी वो ठीक हो गई। ऐसा क्यों होता है? दीज आर ऑल आवर बिलीव्स कि हमको विश्वास है कि उस दूध हल्दी से हम ठीक हो जाएंगे, हमको विश्वास है कि उस काढ़ा से मेरी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो रही है ना। तो यही है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर बीइंग ग्रेटफुल टू दैट काढ़ा कि वो हमको क्योर कर देगा, राइट? यही तो है ना। दिस इज व्हाट वी हैव बीन रीडिंग, दिस इज व्हाट वी हैव बीन लर्निंग। या तो ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर increases the natural flow of health to the mind and body and it can assist the body in healing more quickly, ठीक है। तो ये ग्रैटिट्यूड क्या कर रहा है? अगर आप दवाई भी खा रहे हो, आप दवाई को ग्रैटिट्यूड दो। इट इज नॉट सेइंग कि आप जो दवाई खा रहे हो उसको खाना छोड़ दो, इट इज सेइंग इट विल असिस्ट अस
या इन हीलिंग आवर बॉडी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई ऐसी दवाइयां खा रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड करने लगो और दवाई खाना छोड़ दो, प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, जो दवाई खा रहे हो, इट इज सेइंग ग्रैटिट्यूड अलोंग विद दोज मेडिसिन्स, अलोंग विद द बॉडीली केयर, इट विल increase the recovery in a faster manner. Yeah, so it will go hand in hand with bodily care, nutrition, and any medical assistance we might have chosen to follow. Okay, yeah. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health. हाँ, देखिए ये तुमने पढ़ा ही है, ऐसा क्यों होएगा? अगर अपन को आप बोलोगे नहीं इट इज वेरी इजी, हाँ मेरे को दर्द है, मेरे को बुखार है, तो कैसे हम चिंता नहीं करें, करना ही पड़ेगा, ऐसा भी एटमॉस्फेयर चल रहा है, कैसे नहीं करें। बट आप देखिए ये जो सारी फीलिंग्स हैं, वरी, फ्रस्ट्रेशन, फियर, ये सारी बिलो द लाइन फीलिंग्स हैं। इफ वी आर हैविंग दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स, व्हाट विल हैपन? आवर नाइटमेयर विल कम ट्रू। हाँ, एंड सेकेंडली व्हाट विल दिस अट्रैक्ट? more worry, more frustration, and more sickness. We don't want that. ठीक है, so it is very important that we stay above the line, whatever the situation is, we have to be in the state of gratitude. ठीक है, अब जैसे आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपके पेट में दर्द है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, पेट में दर्द है, तो अगर आपको पेट के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं निकल रहा है, ठीक है, इफ यू हैव कॉन्स्टिपेशन, आप बोलोगे नहीं कॉन्स्टिपेशन ना, यू डोंट नो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं निकल सकता, कैसे निकलेगा? आप उसके बारे में, डाइजेशन के बारे में नहीं कर सकते हो, आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कर लो, आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, लाइक बॉडी इज फुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर, आप उनके लिए थैंकफुल होना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो अगर आप उस पर नहीं फोकस कर पा रहे हो, आप इग्नोर कर दो उसको, जस्ट लाइक दैट नॉटी किड इन द पार्टी और द नॉटी किड इन द स्कूल, उसके अगर ऊपर अपन फोकस करेंगे तो क्या होगा? वो और बदमाशी करेगा, है ना, वो और एक्ट करेगा। अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे, यही तो होता है ना, आपने उसको इग्नोर कर दिया तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज लाइक साइंटिफिकली प्रूवन, इट्स कॉल्ड द ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। आप उस पर ध्यान दोगे तो वो डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, तो वी हैव टू, अगर नहीं आ रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, बट उसके लिए ग्रैटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इतने दिन वो आपका अच्छे से काम कर रहा था, जब वो नहीं कर रहा है तब आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ग्रैटिट्यूड करो, अगर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, देन यू फोकस ऑन सम अदर बॉडी पार्ट, ठीक है, and start being gratitude for that. Yes. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Yes, so this we have seen, है ना, कि कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, सबसे इजी ग्रैटिट्यूड होता है। अब वो कैसे हो सकता है? आप तुरंत इमेजिन करो कि वो नहीं होगा तो क्या होता। ठीक है, वो बॉडी पार्ट अगर आपका अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो कैसा होता है ना। अगर आज आपके सर में दर्द है तो आप सोचो, अगर सर में दर्द नहीं होता, ऐसे ही तो यही सोचना होगा ना, तब हम कितना नॉर्मल होते, कितना अच्छा स्टेट होता। तो उसके लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body brings more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. Yeah, so what happens now? We are talking about physical appearance. देखिए, we are women, of course, most of us are women, and even for men, ऐसा नहीं होता। हमको लगता है काश थोड़ी सी हाइट और होती, काश थोड़े से पतले होते, काश शायद जी आपकी तो नोज बहुत अच्छी है, काश थोड़ी नोज और नुकीली होती, फीचर्स थोड़े शार्प होते। ऐसा नहीं लगता हम लोग को? बाल थोड़े से थिक होते, जिसके बारे में भी बोलो, हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ बोल ही रहे होते। तो हम लोगों ने इतने साल क्या किया है? कोई भी जान 100% अपने बॉडी से सेटिस्फाइड है, in the sense like with the physical appearance, with the gift we have got from the God? हाँ, कुछ है ऐसा कि हम लोग हाँ कुछ भी नहीं चेंज करना है हमको? अगर होगा भी, वेट भी अगर होगा ना, तो 1 किलो तो कम करना ही होता है कि नहीं होता है?
मिनिमम मैंने उतना हो जाएगा तो ना और अच्छे लगेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो और अच्छे लगेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल वैसे, बट कुछ भी थोड़ा सा ना ये और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो और अच्छा है। तो वी आर ऑलवेज थिंकिंग और कंप्लेन, यू नो, इफ नॉट इन आवर थॉट्स देन बीइंग वोकल अबाउट समथिंग और द अदर अबाउट आवरसेल्व्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, दैट इज अगेन कंप्लेंट। हम लोग नहीं ग्रेटफुल हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे हमारी हेल्थ को हम लोग रिस्क में डाल रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज द most important line which has been told to us right from the beginning. Let's read, Shayaji, what is this amazing line? Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Yes. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. Yeah. So You now may- this too we have understood. We don't need to explain this. If we are complaining about नहीं ये ना ये जो 1 इंची का वेस्ट है ना थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, तो we are complaining, है ना, तो क्या वो अगर अपन ऐसे कंप्लेन करेंगे तो वो 1 इंची कम होगा? कभी नहीं होएगा, वो और बढ़ेगा। 1 इंची लो, तुमको 1 बोल रहे हो ना, लो 2 इंची लो, और अब 2 इंची के बारे में बोलो, ऐसे हो जाता है। एंड वी हैव सीन इट, जितना डाइट कर रहे हैं, जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं हो रहा है वेट कम। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? पिंपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं हो रही है ठीक। तो दीज आर ऑल फिजिकल एस्पेक्ट्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हेयर, वी नो इट। एक बार अपन चिंता कर रहे हैं, 2 बार अपन बात कर रहे हैं हेयर फॉल के बारे में, तो वो क्या कम हो जाती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, वट एवर वी आर कंप्लेनिंग अबाउट will keep on, you know, increasing in our lives. What will keep increasing? The opportunity to complain about it will keep on increasing. Okay, so now we know if we want to, you know, bring our weight to our ideal weight, what we have to say. बोलना ही नहीं है कि कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, पतले ही नहीं होते हैं, कम ही नहीं होता है वेट, ये सब नहीं बोलना है हम लोग को, ठीक है? या You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to assess feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Yeah. So see what Rhonda Byrne is telling us. अगर अपन कितने भी सीखो, कितने भी अनवेल हो, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. Just see how cutely she has told us that we have the gift of health. We are alive. We are breathing. We have eyes to see and read. We have ears to hear. ये सब gift of health हमको मिले हुए हैं, हाँ? And not just gift of health, हमारे पास gift of wealth भी है। हमारा नेटवर्क चल रहा है, हमारे पास अगर बुक से भी पढ़ रहे हैं तो भी हमने पैसों से खरीद के वो बुक लेके पढ़ रहे हैं, तो वो भी हमको सब मिल रहा है। हमारा ब्रेन सही है कि हम ये सब हम कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं अच्छे से, हाँ? तो ये इन्हीं चीजों के लिए हम लोग ग्रेटफुल हो जाएं, राइट? So she is telling us, no matter how sick we are or how unwell we are, if we are reading it, if we are listening to it, means we are receiving the gift of health. Yeah. So we have got so many more reasons to be grateful for. Okay. Yeah. And even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health into the body. Okay. So now we know, कुछ भी हमारे health में situation है, तो हम लोग को कैसे उसको gratitude से turn करना है. It will increase the magical flow of health to the body. Okay. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple approach to accelerate the results. Yeah. So Rhonda Byrne is telling us that now, if we are okay, so there's some network issue at my end. Everyone can hear me? Yes, clearly, ekdam. Okay, yeah, thank you then. Yeah. So what Rhonda Byrne is telling us, that if we are grateful for our health, okay, then kya tha? Sorry. Yeah. So if we are grateful for our health, and today's practice will make sure that it dramatically increase our health, okay, and happiness. ठीक है? कैसे? If we are not well, what do? We crave, we complain, है ना? ये गंदा है, खाने का मन नहीं है. That is what we do ना. Quite some of us do that, है ना? और अगर जो ऐसा नहीं भी करते हैं, तो क्या आपको दर्द में, दुख में देख के
आपके सामने वाले फैमिली मेंबर्स हैप्पी रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो आज की जो प्रैक्टिस है, रॉन्डा बर्न ने ऐसे प्लान किया है that it will dramatically increase our health and happiness. Okay, and how is she doing it? Triple pronged approach. अब बोलोगे आप ये क्या है? Let's see. Yeah. Step 1, health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Yeah. Let's read this, then we'll do this thing, okay? नहीं, हाँ, आगे कर दीजिए ना. हाँ. आगे But कर yeah, दो. this is the second page. Yeah. Acha, step second, sorry. Health you are continuing to receive, present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that it is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidney, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you for each one. Yeah. Step 3, health you want to receive, future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. Yeah. Very So now, often. one second, Shaji. So now we will do a little bit of, this exercise, yeah, that Rhonda Byrne is asking us to do. So before we do that, I want all of you to think of something which you want to improve, right? It could be some, किसी का कुछ आपका कोई हार्मोन इशू हो, या आप डाइजेशन अच्छा चाहते हो अपना, या कुछ भी इस टाइप का आपने कोई अपने ड्रीम लिस्ट में बनाया है, some health issue that you want to improve. कुछ नहीं बनाया, maybe some flexibility, huh? Yes. Yeah, something you have thought of, कुछ back pain है, या something you have thought of, yeah. Yes. So let's do this, yeah. So I want all of you to sit straight, yeah. So just जो लोग किचन में हैं, प्लीज आप लोग ये मत करना, ठीक है, या तो बैठ के करना, ओके, हाँ. So I want all of you to sit straight and close your eyes. Yeah, and switch on your camera, please, before you close your eyes, so that I know that, yeah, you are doing it. So please close your eyes and take a deep breath in and a long breath out. One more time. Take a deep breath in and a long breath out. One more time, a deep breath in and a long breath out. You're a small kid in your school ground, chasing your friends or sitting on the swing. Feel the breeze on your face. Can you hear the laughter of your friends? The call of your name? Who is that running behind you? Or are you playing on the swing or the seesaw? Is it your school ground? Or are you playing with your cousins, running and chasing them? Remember, you didn't have a care. All you cared was catching that friend or escaping from that friend. How are you feeling? Light
energetic, happy. Now you've grown up. You're with your friends or your cousins in the dandiya or a nightclub or at a cousin's wedding or aunt's wedding, all dressed up, catching the eye of everyone around, looking pretty, looking smart and handsome. You feel the music, hear the music. How are you feeling? Are you dancing? Or just looking and admiring the others dance? Are you singing at the party? Singing along at the dandiya? You're so active, energetic, full of life. Not a care in the world. Now you're fully grown. Are you married? How are you feeling? It's your wedding, or your sister's wedding, or your brother's wedding, all decked up, looking super good, full of life, running around, no care in the world again. Prettiest ever, smartest ever, energetic, happy, full of life. Now, come to today. How are you feeling now? Your eyes are in the perfect condition. You can see the world. You can see your loved ones. Read a book. Check the news. Check your WhatsApp. Look around the nature. Your eyes are so wonderful. Thank you for the perfect vision. You listen to the music, listen to the bhajan, listen to the songs, listen to your child's call or your mother's or your spouse's. You can hear everything. The cuckoo, the bells in the temple. Thank you for the perfect hearing. Can you taste the sweetest mango of the season, or the tomato, or the butter, the ice cream, the chocolate? Thank you for my sense of taste. Your arms. You can lift your phone, make a call, lift your book, change your clothes, lift a glass of water, sip it. How do you do that? Thank you for my arms. You can walk around, climb the stairs, go to the toilet, to the kitchen, sit on the bed, dance, exercise, or just chase your child. Go to the window. You can do each and everything because of your legs. Thank you, my wonderful, strong legs. My wonderful circulatory system. The blood flow from your heart to the brain to each and every 100 trillion cells. It supplies oxygen, nutrients to each and every cell. Thank you to my circulatory system. My wonderful, super creative brain. It took me to my childhood just now. It took me to my adolescence and back to the current moment. It makes me experience, feel, touch, respond to each and everything around me. It takes me to my future, my vision,
my dream. Thank you, my super creative, amazing brain. Now, think of that organ you want to improve, that appearance that you want to change. Think of the perfect and ideal state you want it to be. How does it feel to get that? It's in the perfect, ideal state. Healthy and amazing. The way it is just supposed to be, the way it was when you were just a kid. Healthy, energy, full of energy. Thank you, thank you, thank you for the ideal state of that particular organ. Thank you. Take a deep breath in and a long breath out. One more time. Take a deep breath in and a long breath out. One last time. Take a deep breath in and a long breath out. Now slowly and gently open your eyes. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Amazing. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Priyaji. Thank you so much. It was really amazing. Amazing, it was very nice. So this is what we have to do. Okay, this is how we have to do the practice tomorrow. Okay, we have to go back to our childhood, to that state. Remember the times when you were super energetic. Okay, happy. It could be anything. It could be on a holiday. It could be in the school. Any time that you did not have a care in the world and you were like full of life and energy. Okay, and this is how we are going to do it: past, present and future. This is the three-pronged approach that we are talking about, which will create miracles in our health. Okay, yeah, so let's continue from here. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and outcomes. Dreaded outcomes, yeah. Dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Yeah, so what Rhonda Byrne is telling us, that if we have, whenever, it's like, I think we have, every one of us has done this. अभी जो situation चल रहा है उसके बारे में तो हम लोगों ने 1 साल से गूगल कर रहे हैं, हम लोग इतना गूगल कर लिया होगा कि क्या बताएं। और जो गूगल नहीं किया है वो न्यूज फॉरवर्ड सबसे हमारे पास भरपूर नॉलेज है पूरी, ठीक है। उसके पहले क्या होता था, तब तो जब रॉन्डा बर्न ने बुक लिखी थी तब तो ये था नहीं, बट इट इज ऑल प्रूवन राइट अगेन इन दिस सिचुएशन। इसके पहले क्या होता था, थोड़ा सा कहीं दर्द है और एक बार आपने सोचा कि क्यों हो गया, तुरंत गूगल किया, गैस से हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी, ट्यूमर भी हो सकता है, अच्छा ट्यूमर भी हो सकता है, बस वो दिमाग में घुस गया। फिर अपन नेक्स्ट डॉक्टर के पास नहीं गए, फिर दूसरा रिसर्च चालू हो गया उसके ऊपर, ठीक है। ये अपन करते हैं। कोई मेडिसिन खाते हैं तो क्या करते हैं, मेडिसिन अगर डॉक्टर ने हमको दे दी
तो सारा रिसर्च उस पर ही कर लेते हैं, जैसे हमको नेक्स्ट वो मेडिसिन बनानी ही है ना, यही करते हैं ना, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या करते हैं अपन, यही करते हैं ना। और तो और कुछ नहीं, दूसरे लोगों को फोन कर करके पूछते हैं उसने क्या क्या, बोले अच्छा ऐसा है, उसका भी जब सर दर्द हुआ था ना तो पता नहीं और ही कुछ निकल आया था। बी वेरी केयरफुल, हाँ एकदम ध्यान रखना। फॉर अ नॉर्मल हेडेक ऑल्सो वी डू फुल रिसर्च नाउ। पहले क्या होता था, सर दर्द हुआ, बाम लगाया, सो गए। वो भी बाम भी सब जन नहीं लगाते होंगे, पहले तो ये होता था ना। हाँ, आपने देखा होगा आपकी दादी नानी किसी को भी, या कोई भी थोड़ा सा सीनियर भी होगा, उसको सर में दर्द होता है कुछ, वो क्या करता है, हाँ थोड़ा सा सर दबा लेता है या चंपी करवा लेता है। रिमेम्बर आई हैड अ रिलेटिव, स्टिल हैव, सॉरी, उनका कुछ सर में दर्द होता ना तो लगता था ओहो फिर सर दबाना पड़ेगा, यू नो वी वर लाइक दिस, वी वर स्मॉल एट दैट टाइम। ऐसे ही उनका सर दर्द ठीक हो जाता था। आजकल क्या होता है, इतने सर दर्द के लिए ही, नॉर्मल हेडेक के लिए कितनी सारी चीजें हो गई हैं। नॉर्मल हेडेक अब वो रहा ही नहीं है। पहले आपने अगर सैरिडॉन कोई खाता है आजकल सैरिडॉन, नहीं, सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। नॉर्मल हेडेक इज ऑल्सो रिलेटेड टू गैस, माइग्रेन, दिस दैट, माने एवरीथिंग, माने कुछ भी, मैंने सोच नहीं सकती। सर दर्द हो तो कान में भी कुछ हो सकता है, इधर भी कुछ हो सकता है, टूथे भी हो सकता है, एवरीथिंग रिलेटेड इन द एंटायर बॉडी के कारण हमारा आजकल हेडेक हो जाता है। और कहाँ से मिलता है ये सब, वी आर पुटिंग सो मच अटेंशन इन दीज एरियाज, एंड व्हाट विल हैपन, जितना अपन उस पर फोकस देंगे उतना ज्यादा वो और एग्रेवेट ही होएगा। जस्ट लाइक दैट नॉटी किड इन द क्लास, इफ एवरीवन इज इग्नोरिंग दैट चाइल्ड, हाउ मच नॉटीनेस विल दैट पर्सन डू। टेल मी, एक बच्चा जब टैंट्रम थ्रो करता है, हाँ तो क्या होता है, आप उस पर ध्यान दोगे उसका टैंट्रम बढ़ता चला जाएगा। So what Rhonda Byrne is telling us that our body behaves in this manner. अगर हम उस पर फोकस कर रहे हैं तो वो और बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। और अगर अपन उसको इग्नोर कर रहे हैं वो शांत हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन उसको इग्नोर करके दूसरे बॉडी पार्ट्स को अप्रिशिएट करने लगेंगे तब वो और शांत हो जाएगा और नॉर्मली बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट Rhonda Byrne is telling us, that when we are putting our entire focus on that disease, it keeps on increases because the law of attraction feels that we are wanting all that. We are putting all our energies in that particular area. And what happens is, our wherever our focus is, our energy goes in that direction. ठीक है, energy goes where, no, हाँ ये energy goes where we put our focus, ठीक है। तो अब हम लोग को ये नहीं करना है, हम लोग को अब क्या करना है, कुछ भी इस टाइप की चीज होगी वी विल जस्ट इग्नोर। हाँ, रिमेम्बर पहले ऐसा होता था, किसी को कुछ कुछ भी सर्जरी है या कुछ भी होता है, दे वुड नॉट टॉक अबाउट इट। बट आजकल क्या होता है, कुछ हुआ नहीं तुरंत आपने सबको इन्फॉर्म कर दिया, सबको बता दिया, फोन कर करके बताया। जैसे नहीं, कितनी गुड न्यूज है, एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है, सबको फोन कर करके बताते हैं आजकल हम लोग। पता है ना उसको ऐसा हो गया, पता है ना उसको ऐसा हो गया। डोंट वी डू दैट। और जिसको नहीं बताया है उसको लगता, अरे उसको लगेगा कि हमको नहीं बताया, ला उसको भी बता देते हैं। डोंट वी, हैवंट वी डन दिस नाउ? हाँ, थैंकफुली माय मॉम हैज नेवर बीन लाइक दिस, ठीक है। सबको क्या बताना है, सबको क्या, हम बोले अरे कुछ, अरे हम लोग को ही खुशी होने लगती नहीं बताओ तो, है ना। गिर पड़े हैं कहीं पे अगर, सबको फोन करके बताना होता है। आज ना वहां जा रहे थे, पूरी स्टोरी, ऐसे पहने थे शूज, वैसा पहने थे ना, यहाँ ट्विस्ट हो गया, वो वैसा था और गिर गए हम, बस। जो वो छोटा सा एंकल का स्प्रेन था वो कितने दिनों तक चल जाता है फिर, होता है ना। तो बोले अच्छा तुमने एक्सरे नहीं कराया, एक्सरे तो कराना बहुत जरूरी है। सिंपल मोच को भी आजकल हम लोग एक्सरे कराते हैं, और फिर कुछ नहीं आया तो हम ही लोग गूगल मैंने देखने में लगता है कैसे नहीं आया, दर्द तो बहुत हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ अस हैव डन इट? ऑल ऑफ अस, नो वन कैन से कि हमने नहीं मैंने किया है, हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है एकदम। हाँ, हु इज हाँ, दैट? दीपिका? हाँ, यस, हाँ, दोनों भी ज्योति हाँ, ओके ओके, यस, ऐसे ही हुआ एकदम, एकदम। हाँ, ओके, स्प्रेन वाला, मोच वाला, ओके, ठीक है। सो ये सी दिस इज लाइक वेरी लाइक बहुत नॉर्मल है आजकल ये। हाँ, हम लोग सब ऐसे ही करते हैं आजकल। होम्योपैथी दवाई मैंने गूगल की, होम्योपैथी दवाई का भी साइड इफेक्ट हमने देखा था, ऐसे कैसे दे दिया उन्होंने, ये दवाई का तो नाम ही नहीं, हमने जरूर कुछ, मेरे को अजीब टाइप का कुछ हुआ है, दैट इज व्हाई देन आई गूगल द नेम। आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। और साइड इफेक्ट्स तो अपन ऐसे देखते हैं, नहीं भी उसका साइड इफेक्ट हो रहा होता है ना, लगता है कि हाँ उसमें लिखा तो था, टमी एक भी होगा, डायरिया भी होगा, सब कुछ होने वाला है। We all do it, and we are not to do that. It is only going to make the problem worse. And what Rhonda Byrne is telling us, we should do the exact opposite. We should focus on the ideal state, है ना? और gratitude for the ideal state will make sure that we attain that ideal state faster.
ओके, सो आज से हम लोग को पता चल गया. आई नो इट्स अ वेरी हम लोग की बहुत ऐसी हैबिट है, उसको चेंज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट वी विल डू इट. ठीक है, बिकॉज नाउ वी नो इफ वी आर फोकसिंग ऑन द डिजीज वी आर अट्रैक्टिंग दैट डिजीज. ठीक है, हम लोग को सिर्फ आइडियल स्टेट पे फोकस करना है. ओके Okay. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and shift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrition to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. या तो अब हमको क्या करना है, कल जो प्रैक्टिस करना है वो स्टेप 1 2 3 करना है, और जो थर्ड स्टेप है उसमें 1 मिनट का हम लोग को विजुअलाइजेशन करना है. ठीक है, इनफैक्ट सबका ही करना है, बट ये 1 मिनट का तो करना ही करना है. एंड दिस शुड बी अ विजुअलाइजेशन दैट वी डू एवरी डे फॉर द पार्ट दैट वी वांट टू हील और द पार्ट दैट वी वांट टू इम्प्रूव ऑन. ठीक है, आपका जो भी सिचुएशन है. अच्छा, जब अपन उसको विजुअलाइज करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि मेरा थायराइड नॉर्मल हो जाए, ठीक है, मेरा नी पेन दूर हो जाए, बैक एक ठीक हो जाए, हाँ मेरा चम्स का पेन चला जाए, ये सब चीजें नहीं बोलनी है. क्या बोलना है, आइडियल स्टेट ही सोचना है. ठीक है, कि आप बोलोगे थायराइड का लेवल ये हो जाए, जो भी उसका लेवल है आपको पता ही होगा नॉर्मल लेवल क्या है, इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट. शुगर आपका कम हो जाए ये नहीं बोलना है, मेरा पैनक्रियाज एकदम परफेक्टली फंक्शन करे, आपको ऐसे करके बोलना है. जो भी आपका हेल्थ इश्यू है उसका आइडियल स्टेट भी तो गूगल करना पड़ेगा. आप नहीं किया होगा, सिर्फ बीमारी गूगल कर रहे होगे अभी तक आप, तो उसका आइडियल स्टेट गूगल करना है, फिर उसको इमेजिन करना है. ठीक है, उसके बारे में जो आपको लगता है, नहीं इफ यू वांट क्लियर स्किन आप वो इमेजिन करो, पिंपल, रैश, रिंकल, डार्क स्पॉट कुछ नहीं बोलना है उसके अंदर. ठीक है, वैरिकोज वेन नहीं बोलना है ये. ठीक है, जो भी आपका है परफेक्ट वेट बोलना है. हाँ, और क्या हो सकता है, हेयर के बारे में बोलना है तो परफेक्ट हेयर आपको इमेजिन करने, लॉन्ग शाइनी थिक, जो शैम्पू के एड्स में जैसे आते हैं ना वो इमेजिन करना अगर आपको वैसे चाहिए तो. आई साइट के बारे में सोचना है तो परफेक्ट विजन का सोचना है, जो हमको चाहिए हमको उसके बारे में विजुअलाइजेशन करना है. जिसको अपन दूर भगाना चाह रहे हैं उसको नहीं सोचना विजुअलाइजेशन में. ओके, तो ये करना है हम लोग को कल 1 मिनट के लिए. Yeah. So again, yes, she's telling us some more. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. या सी, तुम्हारा आइडियल वेट भी ऐसे ही मिल जाएगा. ठीक है, सीक्रेट बुक में आपने पढ़ा था ना कि जो आइडियल वेट है आप उसी को वेइंग मशीन के ऊपर चिपका लो, अलमारी में लिख दो, वार्डरोब में लिख दो, वार्डरोब अलमारी सेम ही है, बाथरूम में लिख दो. जब आप देख रहे हो आपको वही वेट दिखाई पड़ रहा है, जो विजन बोर्ड बना रहे हो उस पे भी लिख दो. ठीक है, कि दिस इज माई आइडियल वेट. आपका आइडियल वेट ये है. अगर आपका वो पहले कभी आइडियल वेट था और वो फोटोग्राफ आपके पास है, ठीक है, टेक दैट फोटोग्राफ एंड पुट इट. अब बोलोगे नहीं मेरे को ना उसमें ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगी थी, डजंट मैटर, ड्रेसिंग के भी आप उसको मॉफ करके दूसरे कपड़े पहना दो, बट पुट दैट फोटोग्राफ ऑफ योर्स. ठीक है, हेयर स्टाइल भी अब तो चेंज, उसमें आप दूसरे कटिंग करके चिपका दो. हाँ, तुलसी एंड ऑल कैन डू ऑल दैट वंडर्स. भी आप बाकी लोगों को एप्स पता होंगे, वो लोग भी ये सब कर सकते हैं. सो डू इट. आप वैसे ही विजन बोर्ड में बना लो और उसी को अपने फोन के स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे बना लो और उसी को देखो. ठीक है, तो जैसा हमको चाहिए हम लोग. अब सी दिस अगेन इज अ स्मॉल विजुअलाइजेशन दैट वी विल बी डूइंग, राइट. तो कल जब अपन ये हेल्थ के बारे में करेंगे तो आप कई जन हम लोग समझ ही होंगे अपन हर एरिया में ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, हर एरिया में हम लोग ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे जब, तो हमारा वो और स्ट्रांगली हमारे लाइफ में आने लगेगा. या Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state
and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, circa 460, circa 370 BC, father of Western medicine. Yeah. So what we have to do is we have to think of the ideal state of whichever area we want to improve upon. ठीक है, हमको imagine करना वो मेरे पास है. Imagine myself. ये नहीं कि आप पतली कमर देख रहे हैं तो दीपिका पादुकोण के बारे में सोच रहे हैं, बाइसेप देख रहे हैं तो टाइगर श्रॉफ के बारे में सोच रहे हैं. नहीं, you have to imagine yourself with the ideal state. ठीक है, and वो visualize करना, फिर उसके लिए thankful होना है. हाँ, now look at what Hippocrates is telling us. He is the father of Western medicine. वेस्टर्न मेडिसिन मतलब, और आप सोचो वो दवाई वगैरह कुछ नहीं बोल रहे हैं. ही इज टेलिंग अस दैट नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज. नाउ टेल मी व्हिच आर द नेचुरल फोर्सेस विद इन अस. क्या है नेचुरल फोर्सेस विद इन अस? नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द 5 एलिमेंट्स. हमारी बॉडी बनी किससे? 5 एलिमेंट्स से ही बनी है. या वाटर, एयर, अर्थ, फायर एंड स्पेस, है ना. हमारी बॉडी इसी से बनी है. यही तो नेचुरल फोर्सेस हैं. आप नहीं सोचो कि सेल्स हैं ये वो है. नहीं, नेचुरल फोर्सेस आर द 5 एलिमेंट्स. हमारी बॉडी उसी से बनी है और वो ही ट्रू हीलर्स हैं. आप बोलो ये फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन नेचुरल फोर्सेस के बारे में बोल रहा है. तो अगर अपन नेचुरल फोर्सेस को बाहर थैंक यू करेंगे तो हमारे बॉडी के जो अंदर हैं उनको भी अपन थैंक यू कर रहे हैं. उनको अपन डायरेक्ट कर रहे हैं टू हील माय बॉडी. Okay, so now you have to think and reflect on this, that जैसे the whole universe is within us. अपन बोलते हैं परमात्मा हमारे अंदर है. This is what we have been reading, listening since childhood in our scriptures, if not in this book. ये तो हम लोग बचपन से यही सुन के आ रहे हैं ना. पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है. तो ऐसा आपने कभी सोचे अच्छा ऐसे कैसे, हम तो इतने से हैं, वो तो इतना बड़ा है. तो सब कुछ सेम ही है. तो ये 5 एलिमेंट्स को जब अपन ग्रेटफुल हो रहे हैं, उनको अपन प्रे कर रहे हैं या ग्रेटफुल हो रहे हैं, उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिकली हील होंगे. एंड दे आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज. ओके, सो व्हेन यू आर हैविंग फूड, व्हाट नेक्स्ट, व्हेन यू आर हैविंग दैट वाटर नेक्स्ट, रिमेंबर टू बी ग्रेटफुल एंड डायरेक्ट देम. Direct the water and food going in your body. Be grateful to it to heal your system. ठीक है, and keep giving gratitude to the 5 elements everywhere. Yeah. Yes. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want, and by being truly grateful as though you have already received it. Yeah. So now very quickly I'll tell you something. Sorry, it is already 10 or 10. 10. आप देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत इफेक्टिव है. अगर हमको चाहिए कि हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट वंस टुमारो, यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे. हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो, हाँ, तो कर सकते हैं, और उसको अपन रेगुलरली रोज रोज भी कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ इट इज टोटली ऑन अस how fast we want the health restored, how fast we want that ideal state back in our lives. ठीक है, back in our lives, because हमारी वो ideal state थी, हम ही ने कहीं अपने belief से, अपनी complaint से उसको दूर भगा दिया है ना. So this is what we know. अगर आज हमारा hair growth चाहिए तो हमने हेयर फॉल कंप्लेंट कर करके उसको भगाया है. अगर मेरी आई साइट वीक हो गई है तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट कर करके ही हमने उसको दूर भगाया हमारी लाइफ से. Okay, and it is very important. Next thing is very very vital that if we get a negative thought, हाँ, तो उसको हमको तुरंत रिप्लेस करना है. तुरंत कैसे रिप्लेस करना है? तुरंत हमको विजुअलाइज कर लेना है कि नहीं, सब मेरा ये जो आइडियल स्टेट है वो है और आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. ठीक है. सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट वी हैव टू डू. एक, आप बहुत बार उसको प्रैक्टिस को कर सकते हो. सेकंड, जब भी नेगेटिव थॉट आए तुरंत उसको विजुअलाइज करना है कि मेरा आइडियल स्टेट को आ गया एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर इट. Yeah.
The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. Yeah, this is for those lazy people, those lazy, group of us जो सोचते हैं कि खाली ग्रैटिट्यूड करने से हम पतले हो जाएंगे, खाली ग्रैटिट्यूड करने से हम ठीक हो जाएंगे। ये उन लोग के लिए लाइन लिखी गई, हम लोग के लिए लाइन लिखी गई है कि अगर हम चाहते हैं कि हम फिट हो जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी हो जाएं, तो हमको अदर देन टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ फिजिकली, हमको ग्रैटिट्यूड भी करना है हेल्थ के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग कंटिन्यूअसली हेल्दी रहें। सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से पतले नहीं होंगे, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से वेट नहीं कम होएगा या आइडियल वेट नहीं होएगा। हमको अपना कर्म भी करना है, प्लस उसके संग ये ग्रैटिट्यूड भी करना है। Okay, so Rhonda Byrne has clarified this also for us. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Say 2. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. 3. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. 4. Choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. Okay. So thank you, Chayaji, for reading so enthusiastically for all of us. Yeah. Really loved it. Very sweetly you read. Yeah. So everyone is clear what we have to do. हाँ, अगर आप बोलोगे जो लास्ट आपको विजुअलाइज करना है, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ डिजीज है या जो भी है, हाँ, तो उसको आप आइडियल स्टेट कैसे करो, तो यू कैन विजुअलाइज कि वो चीज क्योर हो गई है, ठीक है। अगर आपको अपना कुछ भी ऐसा रिपोर्ट आप चाहते हो कि इम्प्रूव हो जाए, तो आपको विजुअलाइज करना है कि वो रिपोर्ट में वो सही चीज आ गई है, ठीक है। मे बी इट कुड बी अ हार्मोन, आपको पता नहीं उसका आइडियल स्टेट वो दिखता कैसा है, बट आपको उसका रिपोर्ट का वो नंबर पता होगा, बीपी का वो नंबर होता है, शुगर का होता है, जो भी इस टाइप की चीजें होती है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि वो करेक्ट हो गया है, ठीक है। सो यू कैन डू इट लाइक दैट। तो हमको क्या करना है, सुबह उठ के ब्लेसिंग्स लिखनी है, कुछ लिखना नहीं और, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको रिफ्लेक्ट करना है पहले के वो 3 इंसिडेंट्स, 3 पल जब आप बहुत खुश थे, बहुत ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग, हमने जस्ट एक जनरल कराया था। You can take it from your life, which was that moment, which were those 3 moments, and you have to think on them. And when you're thinking about them, you have to be grateful for whatever state that you felt happy about, ठीक है। So first step is this, that is the past. Now we come to the present, कि आज आपके कौन सी वो 5 चीजें हैं जो एकदम परफेक्ट हेल्थ में हैं। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग जो ठीक चाहते हैं उसका करने लगते हैं, नहीं, दैट इज द थर्ड स्टेप। हमने पास्ट में किया, प्रेजेंट में आए, वो 5 चीजें आप देख लो जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जो आपको लगता है एकदम परफेक्ट है। हमने एक जनरल कराया था, यू कैन टेक दोज 5 थिंग्स एंड बी ग्रेटफुल अबाउट दैट। देन यू हैव टू गो टू द फ्यूचर, जो आप इंप्रूव करना चाहते हो उसको आपको 1 मिनट विजुअलाइज करके देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट दैट, ठीक है। एंड देन मैजिक रॉक तो आज करना ही करना है, ठीक है। सो द प्रैक्टिस इज क्लियर व्हाट वी हैव टू डू। यस, ओके। सो एनी क्लैरिफिकेशन, शेयरिंग नहीं आई बहुत दिन से, कल आई थी बहुत सारी, बट आई वांट मोर, आई एम अ ग्रीडी पर्सन, या सो मोर शेयरिंग्स। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं आएंगी, मतलब हम लोगों ने प्रैक्टिस कम की है ना। इफ वी डू लिटिल ग्रैटिट्यूड we have little magic in our lives, the more gratitude will give us more magic, yeah. So I'll not do that little gratitude, we'll do more gratitude from tomorrow, okay? Yeah, okay. Yes. So Deepika, you're looking very nice. You got a haircut. That's a very obvious. Thank you. हाँ, रोज अपन स्कूल में रिमेम्बर तुमने बाल कटा लिए, तुम्हारा हेयर कट हो गया, रिमेम्बर? हाँ, तभी छोटे हो गए। कहाँ पार्लर, अब तो पार्लर गए हुए जमाना हो गया लॉकडाउन।
ओके नहीं तो क्या हुआ, लास्ट ईयर आई ओनली डिड माय हेयर कट, सो इट्स लाइक परफेक्टली कूल, खुद भी हो सकता है. या सो someone wants to share how you felt about today's practice, magically heal your relationship. आपने की थी? छाया जी ने की थी, बाकी जिनका थोड़ा थोड़ा ब्लैंक लुक, जिनका कैमरा ऑन है थोड़ा ब्लैंक लुक लग रहा है, तो इसका मतलब नहीं की थी. अभी कर अभी लीजिए. करेंगे, हाँ एकदम अभी अभी करेंगे. एकदम अभी करना है. ठीक है. और ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ और सेशन कर रहे हो तो आप अभी नहीं करो, नहीं. जो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा. आपने क्या फूड के लिए और वाटर के लिए ग्रैटिट्यूड बंद कर दिया होगा? नहीं ना. ब्लेसिंग्स आप लिखते ही हो. मैजिक मॉर्निंग, ये वाली जो सारी प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत अमेजिंग है. और मैजिक मैनेजर तो उनको लगता है कि ऑन एंड ऑफ वो आता जाता रहता है मेरे लाइफ में. तो हाँ माने मेरे डेज में कभी आता है कभी हम लोग तो हम लोग भूल जाते हैं मैजिक मैनेज। मैनेजर वाला, मैनेजर लाइक जैसे नहीं, जैसे हर टाइम हर चीज के लिए, जैसे कोई चीज देखते हैं आप मतलब सब चीज के लिए थैंक यू होते रहते हैं, लेकिन तो बस ठीक है. वो वैसे नहीं कहते हैं कि मैनेजर लिखो. हम लोग भूल जाते हैं। नहीं मैनेजर को थोड़ी उसको मैनेजर बोलना, बोलते हैं वो अपन. सुन रहा है. बस वो सुन रहा है, वो नहीं, उसको तो इनविजिबल है सुना ना, है, वो सुन वो रहा करता है. रहता है वो. हाँ ठीक है. ओके इट्स नॉट दैट हमको उसको बोलना है लिख रहे हो तुम भैया कि नहीं लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना है. बस बोलते रहना है थैंक यू दिस थैंक यू दैट. इट्स लाइक ओके वी हैव टू बी अवेयर कि किसी को हम बोल रहे हैं. ठीक है. वैसे बस पूरे टाइम बोलते रहना हम लोग को. ओके. एंड हेल्थ के लिए जितना अपन याद करोगे, मैजिक नोट बोल रहे हैं, वो अपना नोट देखना है आपको. ठीक है. आप बोलोगे नहीं अभी तो लॉकडाउन है, कहाँ वो रखा है पता नहीं. नहीं, आप उसको चिपका लीजिए कहीं, उसको देखते रहिए. ठीक है. लॉकडाउन है तो भी अकाउंट में अपन को पैसे चाहिए, डिस्काउंट चाहिए ही है ना. तो एकदम उसको चिपका लीजिए. और ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए. एग्जैक्टली ज्यादा ज्यादा चाहिए, चाहिए। तो जितना ज्यादा उसको हाँ छू के. बिजनेस इस टाइम, शॉप सब वो हो रही है तो ज्यादा चाहिए. हाँ एकदम और करना है उसको. ठीक है. सो शुड वी कॉल इट अ नाइट? नो मोर शेयरिंग्स तो. ओके. थैंक यू छाया जी, हमको लगा आपको बीच में जाना है एंड आई थिंक समवन वाज कॉलिंग यू. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट. यस. सो लेट्स अभी जॉइन. एनी ने अब Yeah. So let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। The wonderful 5 elements who are there all around us, who are there within us, giving us this beautiful health, this wonderful life, and keeping us healthy and strong in every situation. The 5 elements, we are so grateful to you. You are giving us health and life, and also to our loved ones and family. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay, so thank you everyone. See you tomorrow. थैंक यू Thank you and good night. Thank you, See you Priya. tomorrow. Good Please night. दोनों Thank you, Priya practice ji. जिन्होंने Thank you, नहीं Priya की है अभी कर लीजिए. ठीक है. आज वाली practice it will not take too much time. It is just for ourselves, for making our lives better. Okay, and कल का practice भी. Okay. Tulsi, I like your blurred background. Thank you. Blurred background. Okay. Thank you and good night.